Hello everyone, welcome to the Next Civil Engineer YouTube channel. Today we are going to learn hardness. First of all, we are learning what is hardness, what is carbonate hardness and non-carbonate hardness, and what is the permissible limit of total hardness. So let's start hardness. Friends, permissible limit of total hardness is 75 to 200 ppm. You can see here hardness, the permissible limit of hardness is 75 to 200 ppm. Total hardness is characterized into two types, that is carbonate hardness and non-carbonate hardness. First of all, what is the definition of hardness? Let us learn. Hardness is defined as concentration of multivalent metallic cations in solution. हार्डनेस को डिफाइन किया जाता है, कंसेंट्रेशन होता है मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस का इन द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन में. अब मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस क्या होते हैं? मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस मोस्ट अबंडेंट इन नेचुरल वाटर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम. कैल्शियम और मैग्नीशियम मल्टीवैलेंट मेटालिक कैटायंस होता है जो नेचुरल वाटर में पाया जाता है. Next point is other ions which lead to hardness are Fe2 plus, that is iron, manganese Mn2 plus, but are found in much smaller quantities, and hence for all practical purposes hardness is represented by the sum of calcium and magnesium ions. So this point is clear to you. दोस्तों, जो भी आयन कैल्शियम और मैग्नीशियम के अलावा पाए जाते हैं वो बहुत थोड़ी मात्रा में होते हैं, स्मॉलर क्वांटिटीज़ में होते हैं, इसलिए हर प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए हार्डनेस को रिप्रेजेंट किया जाता है बाय द सम ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू. Let us learn some range of hardness so that we can classify what is the type of water. So look at here, if hardness lies in the range less than 75 ppm, that is mg per liter, less than 75 ppm, then type of water is soft water. If hardness value lies between 75 to 200 ppm, then the type of water is moderate water. And if the hardness is more than 200 ppm, then the type of water is hard water. I hope this is clear to you. Next important term we will learn in this particular topic is carbonate hardness and non-carbonate hardness. Friends, first carbonate hardness we are going to learn, which is also called as temporary hardness. Carbonate hardness is also known as temporary hardness. It is due to presence of carbonate and bicarbonate of calcium and magnesium. It is well known to us that it is due to presence of carbonate ions and bicarbonate ions of calcium and magnesium. It can be removed by simple boiling or by addition of lime. इसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं. कैसे रिमूव कर सकते हैं? It can be removed by simple boiling or by addition of lime. I hope carbonate hardness or temporary hardness is clear to you. Now we will learn what is non-carbonate hardness or permanent hardness. Friends, please concentrate here. Non-carbonate hardness is due to presence of sulfates, chlorides, etc. Non-carbonate hardness क्यों होता है? Due to presence of sulfates and chlorides. It can be removed by ion exchange method or zeolite process और डीमिनरलाइजेशन. इसको रिमूव कर सकते हैं हम लोग आयन एक्सचेंज मेथड से या फिर जियोलाइट प्रोसेस से या फिर डीमिनरलाइजेशन करके. आई होप नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या फिर परमानेंट हार्डनेस भी आपको क्लियर हो गया होगा. आइए आगे बढ़ते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ CaCO3, that is calcium carbonate, in milligrams per liter. Friends, this is the universal formula to calculate total hardness in terms of calcium carbonate in mg per liter.
So what is the formula? Here it is. Total hardness in terms of calcium carbonate in mg per liter is equals to concentration of calcium ion in mg per liter multiplied by equivalent weight of calcium carbonate divided by equivalent weight of calcium ion plus concentration of magnesium ion in mg per liter multiplied by equivalent weight of calcium carbonate divided by equivalent weight of magnesium ion. Like in the case of alkalinity, we have already learned how to calculate equivalent weight of different type of ion, different ions, and what is the equivalent weight of calcium carbonate CaCO3. Here you can see it is written equivalent weight of magnesium ions is 12 and equivalent weight of calcium ion is 20. You can also remember this important equivalent weight of ions of calcium and magnesium. Now we will learn total hardness is less than or equal to alkalinity, then what is the scenario? Total hardness is equal to carbonate hardness. If total hardness is less than or equal to alkalinity, total hardness is equals to carbonate hardness. जब भी टोटल हार्डनेस अल्कनिटी की वैल्यू से कम आएगा या फिर उसके इक्वल आएगा तो टोटल हार्डनेस इक्वेट कर सकते हैं हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस. इट मीन्स टोटल हार्डनेस कार्बोनेट हार्डनेस के बराबर हो जाएगा एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इस केस में ज़ीरो हो जाएगा. उसी तरीके से सेकंड केस है हमारा टोटल हार्डनेस इज ग्रेटर देन अल्कनिटी. इफ टोटल हार्डनेस कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन अल्कनिटी then carbonate hardness is equals to alkalinity. You have to remember like this, total hardness is carbonate hardness plus non-carbonate hardness, we all know. Hence total hardness in this case total hardness is greater than alkalinity. In this case carbonate hardness is equals to alkalinity. That's why carbonate hardness की जगह पे हम लोग alkalinity रखेंगे प्लस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस. इसलिए नॉन कार्बोनेट हार्डनेस इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल हार्डनेस माइनस alkalinity. Friends, here one or two important note points we should keep in our mind, that is carbonate hardness is equals to minimum of total hardness or alkalinity. कार्बोनेट हार्डनेस निकालना है तो हमें टोटल हार्डनेस और अल्कनिटी निकालनी होगी और इस दोनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी कार्बोनेट हार्डनेस हो जाएगी. और नॉन कार्बोनेट हार्डनेस निकालने के लिए टोटल हार्डनेस में से कार्बोनेट हार्डनेस माइनस कर देंगे तो हमें वो वैल्यू मिल जाएगी नॉन कार्बोनेट हार्डनेस की. आई होप ये कार्बोनेट हार्डनेस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस आप लोग समझ गए होंगे. आइए फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं. Now we will learn measurement of hardness. How to measure hardness? Friends, in laboratory we will measure hardness. We will use some standard solution as a titrant and indicator. So here it is procedure. Standard Versenate solution, that is EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid 0.01 मोलरिटी का यूज़ होगा एज ए टाइट्रेंट. इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसिटिक एसिड EDTA का फुल फॉर्म हो गया. इंडिकेटर यहाँ पे जो यूज़ होगा वो EBT इंडिकेटर यूज़ होगा जिसका फुल फॉर्म होता है इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर. ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, माइंड में रहना चाहिए. ये आपका रिएक्शन है कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम आयन जो होगा वो इरियोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर जो कि ब्लू या फिर ब्लैक कलर का होता है उससे रिएक्ट करेगा. उसके बाद कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन माइनस EBT ये आपका इरियोक्रोम ब्लैक इंडिकेटर वीक कॉम्प्लेक्स वाइन रेड कलर का बनाता है. उसके बाद जो रिएक्शन होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम माइनस EBT प्लस EDTA. अब हम लोग इसमें टाइट्रेंट मिला रहे हैं उसमें EDTA, तो ये रिएक्शन आएगा आपका कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम माइनस EDTA प्लस EBT. देखिए ये कैल्शियम मैग्नीशियम माइनस EDTA ये होगा, ये कलरलेस होता है और EBT फिर ब्लू ब्लैक कलर का आपका हो जाएगा. इस हिसाब से हम लोग इसको आगे देख सकते हैं. आइए एक कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन देख लेते हैं यहाँ पे, जो कि है 17 ग्राम पर लीटर ऑफ OH माइनस आयन्स इज इक्वल्स टू 1 मोल पर लीटर. ये आपको पता होना चाहिए कि 17 ग्राम पर लीटर ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 1 मोल पर लीटर. 1 ग्राम पर लीटर ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 1/17 मोल्स पर लीटर.
वही आप यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। 1 मिलीग्राम, यहाँ ग्राम था लेकिन यहाँ मिलीग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं हम लोग। 1 mg/L ऑफ OH माइनस आयन्स इज इक्वल टू 1/17 मोल्स पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय, ये आपका ग्राम को मिलीग्राम में करेंगे तो 10⁻³ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ग्राम ग्राम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसलिए 1 mg/L ऑफ OH माइनस इज इक्वल्स टू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 17 मोल्स पर लीटर, that is 1 ppm of OH minus, because 1 mg/L is equal to 1 part per million of OH minus, 1/17 into 10⁻³ moles per liter of OH minus ion, since 1 mg/L किसके बराबर होता है, 1 ppm के बराबर होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए देखिए एक और पॉइंट देख लीजिए, 1 g/L ऑफ H प्लस आयन्स इक्वल टू 1 मोल्स पर लीटर होगा। 1 mg/L ऑफ H प्लस आयन्स 1 मोल्स पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ से ग्राम बाई ग्राम कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 मिलीग्राम ऑफ H प्लस आयन्स यहाँ से निकल के आएगा 10⁻³ मोल्स पर लीटर, that is 1 ppm of H plus ions equal to 10⁻³ moles per liter of H plus ion। ये दोनों जो आपको देख रहे होंगे यहाँ पे 3 स्टार रेड स्टार में इसमें मार्क किया हुआ है, ये आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो इसको हमें माइंड में रखना है गोइंग फॉरवर्ड। फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग कुछ और डिस्कशन कर लेते हैं जो आगे हमें न्यूमेरिकल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। आइए देखते हैं 1 मिली इक्विवेलेंट, ये कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, तो इसको कैसे करेंगे। 1 मिली इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/1000 इक्विवेलेंट हो जाएगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन इक्वल टू 1/1000 इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। आइए आगे नीचे बढ़ी, 1/1000 इंटू, देखिए 40 क्या है, मॉलिकुलर वेट ऑफ कैल्शियम होता है इन ग्राम्स में, डिवाइडेड बाय 2 इसकी कैल्शियम यहाँ पे +2 है ना, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2, तो यहाँ से आप हम लोग कर सकते हैं 1/1000 इंटू 40/2 इज कम्स आउट टू बी 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन, ठीक है। 20 इंटू 10⁻³ इसको लिख सकते हैं हम लोग, 1/1000 को 10⁻³ लिख सकते हैं, ग्राम्स ऑफ कैल्शियम आयन लिख सकते हैं। इसलिए 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम Ca2+ इज इक्वल्स टू 20 milligram of calcium ions, since 1 gram is equals to 1000 milligrams। तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयंस इक्वल टू 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आयंस हो गया। यहाँ पे नोट करने वाली एक बात है, देखिए 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनी आयन, यहाँ से जो कंक्लूजन लिख रहा है उसको हम लोग जनरलाइज टर्म में लिख रहे हैं, ताकि हर आयन के लिए ये आप फॉर्मूला, क्वेश्चन अगर मैं इस तरीके का दिया हुआ है तो आप अप्लाई करें विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन वर्क। सो दिस इज द ट्रिक। आइए देखते हैं, 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एनी आयन इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पार्टिकुलर आयन एक्सप्रेस्ड इन milligram of that ion। So here you have to notice 1 milli equivalent of any ion is equals to equivalent weight of that particular ion expressed in milligram of that ion। देखिए किसी भी, जैसे कैल्शियम को ले लीजिए हम लोग, 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ कैल्शियम आयन क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट पार्टिकुलर आयन mg/L। देखिए कैल्शियम का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, 20 होता है, तो 20 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम आयंस। तो ये जनरलाइज टर्म आपको याद रहना चाहिए। और यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, देख लीजिए। 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ मैग्नीशियम आयन इज 12 mg/L ऑफ मैग्नीशियम आयन। उसी तरीके से 1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, HCO3- को हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं, तो 61 mg/L ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इस तरीके से भी हम प्रोसीड कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कुछ केस देखते हैं जो कि प्रॉब्लम में कभी कभी आपको मिलेंगे जब आप गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे। तो आइए देखते हैं केस 1, व्हेन कंसंट्रेशन इज गिवन इन mg/L। देखिए अगर प्रॉब्लम में कंसंट्रेशन ऑफ पार्टिकुलर आयन दिया हुआ है mg/L में, तो फिर आप इस तरीके से प्रोसीड करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे हमने हार्डनेस और अल्कनिटी अभी पढ़ चुका है, तो हमने दोनों इसमें शामिल कर लिया है, इंक्लूड कर लिया है। हार्डनेस का फॉर्मूला भी यहीं पे है और अल्कनिटी भी यहीं पे है, दोनों इन टर्म्स ऑफ CaCO3 इन mg/L जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म्स में। देखिए जब भी कंसंट्रेशन अगर mg/L में दिया हुआ होगा तो एकदम आसानी के साथ आपको ऐसे प्रोसीड करना है। देखिए टोटल हार्डनेस
in terms of CaCO3 in mg per liter. Concentration of calcium ion mg per liter में multiplied by equivalent weight of calcium carbonate by equivalent of calcium ion plus concentration of magnesium ion in mg per liter equivalent weight of calcium carbonate by equivalent weight of magnesium ion. ये हो गया. अब अल्कनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालना है mg पर लीटर में, तो कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन mg पर लीटर में इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बोनेट आयन प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन mg पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन प्लस concentration of OH minus ions in mg per liter multiplied by equivalent weight of calcium carbonate by equivalent weight of OH minus ion. इस तरीके से आप हार्डनेस और अल्कनिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे और फर्दर प्रोसीड करेंगे. केस 2 देखते हैं. जब कंसंट्रेशन गिवन है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में, यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन था मिलीग्राम पर लीटर में, डेट इज mg पर लीटर में गिवन था, और यहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में. सो यहाँ पे क्या होगा, टोटल हार्डनेस इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर अगर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में पूछ रहा है या गिवन है कंसंट्रेशन आयन का, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे. कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं करना है, डायरेक्ट जो मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में जो दिया हुआ है कैल्शियम आयन का उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में प्लस कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम आयन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट में. दैट्स इट. अब अल्कनिटी के केस में भी सेम करेंगे. अल्कनिटी इन टर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन mg पर लीटर. देखिए कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनेट आयन्स इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में मल्टीप्लाई करेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन्स मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट दैट इज CaCO3. तो यहाँ पे डिवाइड वाला कुछ कहीं पे भी टर्म यूज नहीं होगा व्हेन कंसंट्रेशन इज गिवन इन मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. ये भी आपके लिए टिप्स एंड ट्रिक था टू फास्ट सॉल्व न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स. यहाँ पे देख रहे थे हम लोग जब कंसंट्रेशन mg पर लीटर में गिवन था तो हमारा फॉर्मूला इस टाइप से था और इसमें डिवाइड भी हो रहा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ पार्टिकुलर आयन जिससे मल्टीप्लाई हम लोग टर्म में कर रहे थे. बट इन केस ऑफ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर ये फॉर्मूला लगेगा जिसमें डिवाइड वाला टर्म नहीं आएगा. आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स सर्कल में, एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद.